Hi friends, welcome back to our channel Mentoring Minds with Ajay Sharma. I hope depreciation की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और depreciation अब आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, सेम depreciation on reducing balance method। तो देखते हैं ये नया क्वेश्चन हमें किस तरह से मदद करता है depreciation कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। So here, before proceeding, हमें ये समझना होगा what are the rules of debit and credit. Already हम पढ़ चुके हैं regarding rules of debit and credit, but let us recall what exactly it is. There are two approaches under rules of debit and credit. एक होता है traditional approach और दूसरा होता है modern approach. As per traditional approach, accounts are classified into personal, real and nominal. हमें ये rules भी पता है. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Also एक approach है इसको समझने के लिए, that is your modern approach. As per modern approach, accounts are classified into four categories, that is asset, liabilities, expense और income. तो हमें पता है all assets हमारे पास add on होनी चाहिए. हमें चाहिए हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा असेट आए ताकि हमारी कन्वीनियंस बढ़े, इसीलिए ऑल असेट्स को हम प्लस करना चाहते हैं, डेबिट करना चाहते हैं. सो डेबिट ऑल असेट्स एंड क्रेडिट जो कर्जा है हमें नहीं चाहिए, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी क्रेडिटेड. एनी हाउ ऑल असेट, जब असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम उसे इंक्रीज करेंगे, यानी असेट अकाउंट शुड बी डेबिटेड. एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, हम उसे क्रेडिट कर देंगे. इफ देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी, विल क्रेडिट, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, वी विल debit it. So with the help of this concept, let us take a beautiful question on depreciation. Now here, before reading the entire question, let us find out for how much period they are asking us to prepare a depreciation account. कितने साल के लिए इन्होंने depreciation calculate करने के लिए कहा. Prepare machinery account, depreciation account for the period of 2020, 21, 22 and 22, 23. So 3 साल के लिए इन्होंने हमें depreciation account बनाने के लिए बोला. So हम 3 साल के लिए timeline बना देंगे. And after this one, what are we going to do? We'll read the question and accordingly we'll place the values. Shalimar Automobiles Limited Thane purchased a machine for 90,000 on 1st April. On 1st October 2021, company purchased an additional machine costing 50,000. देखिए 1st October 2021 comes after 1st April, इसीलिए 1st October 21 will come in second year. On 1st January 23, the machine purchased on 1st October 21 became obsolete and was sold for rupees 45,000. So 1st January 23 comes before 31st March 23 और यहाँ हमने asset बेच दी for 45,000. On the same day, we are purchasing another machine for 60,000. So like this way, we have purchased 3 assets in 3 different years as a replacement. Depreciation was provided annually on 31st March at the rate 10% per annum under reducing, that is written down value method. Right? So they may ask us 10%, they may ask us 9%, 6%, 12%. हमें percentage calculate करने आता है, right? And accordingly हम वैसे calculate करके 12 महीने का depreciation ला सकते हैं and then take the rule of half to get 6 months, 3 months, 9 months. Okay? After this, let us find out for how many months we have used the asset. पहली asset हमने use करी 12 months के लिए in the first year. Second year, first asset we are using it for 12 months and second asset we are using it for 6 months. Then in the third year, ये second asset हमने बेच दी on 1st January. So 1st April से 1st January होते हैं 9 months. First asset we are using it for 12 months and this third asset जो हमने खरीदी 1st January को, we are going to use it for 3 months. After considering this, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन का. याद रहे, अगर ये कैलकुलेशन स्टेप हमारी मिस्टेक होती है तो इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी एक वैल्यू रॉन्ग होने की वजह से हमारे नीचे के पूरे सभी वैल्यूज रॉन्ग हो जाएंगे और हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे.
So now we'll draw the working note like this way. Let us first write down the basic value. हम परचेज डेट लिख लेंगे, दैट इज 1 अप्रैल। खरीदा कितने में? 90,000। 1 अक्टूबर वाला 50,000 और 1 जनवरी वाला 60,000। एंड देन इन द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 12 महीने के लिए 10%। सो 10% ऑफ 90,000 इज 9,000। देन द रिटन डाउन वैल्यू इज 81। In the second year, we will calculate depreciation for 2 assets. सर मतलब यानी ये 2 asset, the first asset that we are using it for 12 months, 12 महीने का, याद रहे the depreciation is calculated on the reducing value. So 81,000 का 10% is 8,100. And here the second asset is used only for 6 months. तो 10% 50,000 का होता है 5,000। 5,000 12 महीने का, तो 6 महीने का होगा 2,500। ओके, सो रिटन डाउन वैल्यू अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट। वी विल ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिटन डाउन वैल्यू। इन द थर्ड ईयर वी हैव सोल्ड द असेट। सो ऑन 1 जनवरी आफ्टर 9 मंथ्स हमने असेट बेच दी। सो 9 मंथ्स का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। याद रहे कौन सी असेट आपने बेची? फर्स्ट असेट और सेकंड असेट। वी आर सेलिंग सेकंड असेट। तो यहां ध्यान रहे, बच्चे ज्यादा करके गलती करते हैं, कैलकुलेशन में फर्स्ट असेट ले लेंगे और मिस्टेक हो जाएगी। डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। याद रहे रिड्यूस्ड वैल्यू 10% ऑफ 47,500 होता है 4750। हम इसका हाफ ले लेंगे तो मिलेगा 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3 मंथ्स का। 6 + 3 मंथ्स विल बी हो जाएंगे 9 मंथ्स। यहां पर 5 का हाफ करते हैं तो 50 पैसा आता है, मतलब 2.5 रुपए आएगा। सो हम उसे राउंड ऑफ करके 1 रुपए बढ़ा देंगे, यानी 1187.50 के बजाय हम लिख देंगे 1188। ठीक है, सो 9 मंथ्स का टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3563। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट द बुक वैल्यू, यानी ये वो वैल्यू है जो हमारे बुक के रिकॉर्ड में होती है। 43,937 की असेट हमने 45,000 में बेच दी। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? यस, हमें हो रहा है प्रॉफिट। सो इन दिस केस वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1063, राइट? ऐसा होता है कभी कभी बिजनेस में कि हम अपनी जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो ज्यादा में बेच देते हैं। ठीक है, इन द थर्ड ईयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। सो 10% हम कैलकुलेट करेंगे पूरे 12 महीने के लिए, विच इज 7290, और 60,000 का 10% होता है 6,000। 6,000 12 महीने का, तो एक महीने का डिवाइड बाय 12 कर लो तो आपको एक महीने का मिल जाएगा 500। एक महीने का 500 तो 3 महीने के हो गए 1500, राइट? So now we will find out the written down value. Also we will find out the total value of depreciation as well as the written down value. Now one by one we are going to pass the entries. ठीक है sir? In the first year the total amount of depreciation is 9,000 and written down value is 81. ठीक है? So now we'll prepare the ledger of machinery as well as depreciation. और अब क्या करेंगे? Same, we'll run the process in our mind. सर क्या, पहले हमने असेट खरीदी तो जर्नल एंट्री हो गई मशीनरी टू कैश। सो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू कैश, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय मशीनरी। लेकिन हम कैश अकाउंट बना नहीं रहे, तो वी अज्यूम दैट वी हैव डन द पोस्टिंग। नाउ वी चार्ज डेप्रिसिएशन at the end of the year. So depreciation reduces the value of asset and it's a loss. So depreciation to machinery. Depreciation में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू मशीनरी, मशीनरी में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना आसान। एंड देन दिस डेप्रिसिएशन विल ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। सिंस राइट नाउ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी अज्यूम दैट कि हमने पोस्टिंग कर दी। अब क्या करना है सर? वी आर गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस वैल्यू।
which we will transfer it to the next year. Depreciation account will get automatically tallied. अब सेकेंड ईयर, दैट इज ईयर बाय ईयर, हर साल की हमें एंट्री पास करनी है. सेकेंड ईयर में चेक आउट, आर वी परचेजिंग असेट? यस. सो हम असेट परचेज कर रहे हैं, असेट यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर, सेम 3 रिपीटेड एंट्रीज वी आर गोइंग टू डू द पोस्टिंग. सर कैसे? टोटल डेप्रिसिएशन इज 10,600 and written down value 120,400. So here we are purchasing asset, so machinery to cash. मशीनरी में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू कैश, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय मशीनरी. लेकिन कैश अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, ठीक है. we'll assume that we have done the posting. Then we'll charge depreciation. The entry is depreciation to machinery. Depreciation के डेबिट साइड पर लिखेंगे टू मशीनरी, और मशीनरी के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय depreciation. And then this depreciation will transfer it to profit and loss. The entry is profit and loss to depreciation. हमें पता है डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन. बट वी अज्यूम दैट वी हैव डन द पोस्टिंग. नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड लेट्स फाइंड आउट द बैलेंस. ये बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर, एंड ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन अकाउंट गेट्स टैलीड. कितना इजी. चेक आउट थर्ड ईयर हैव वी सोल्ड एनी एसेट? यस. जब भी हम एसेट बेचेंगे तब हमें 3 एंट्रीज पर ध्यान देना होगा. फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन which is 3563. Then there is sale proceed which is 45,000, and here in this case we are having profit. So ये 3 एंट्रीज हम accordingly पोस्ट करेंगे. पहले we are charging depreciation, तो एंट्री हमें पता है depreciation to machinery. So depreciation अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे टू मशीनरी, एंड मशीनरी में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, राइट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. देन वी आर गोइंग टू सेल द एसेट. सो एसेट कम्स इन और गोज आउट? गोज आउट, राइट. सो व्हेन एसेट गोज आउट कैश कम्स इन. सो कैश डेबिट करेंगे और मशीन चली गई. कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर हम इसे पोस्ट करेंगे, बट यहां पर कैश अकाउंट हम बना नहीं रहे, तो वी अज्यूम दैट वी हैव डन द पोस्टिंग. मशीनरी के क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय कैश, right? Then next entry is profit. Since debit all expenses and losses and credit all incomes and gains, so profit को हमें credit करना चाहिए, and this profit is charged on machinery, so entry is machinery to profit on sale of machinery. Easy. So machinery account के debit side पर हम लिखेंगे to profit on sale of machinery account. Since profit on sale account हम नहीं बना रहे, तो we assume that we have done the posting. भैया जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना चाहिए, है कि नहीं? Now check out, in the last year have we purchased any asset? Yes, we have purchased the asset, we have used the asset, and then at the end we are going to charge depreciation. ठीक है सर, कितना depreciation कैलकुलेट करेंगे? ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बार बार हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है. Okay, so now we are going to write post the entries for purchase of asset. So asset आ रही है, हम लिखेंगे machinery to cash. मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू कैश, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय मशीनरी. बट अगेन कैश अकाउंट तो हम बना नहीं रहे. वी अज्यूम दैट वी हैव डन द पोस्टिंग. सर ये आप बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हो, लेकिन यही चीज तो इंपॉर्टेंट है. चार्जिंग डेप्रिसिएशन, वी आर अवेयर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू मशीनरी, मशीनरी में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन. एंड लास्ट वन ट्रांसफर एंट्री विल ट्रांसफर डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन. वी अज्यूम दैट वी हैव डन द पोस्टिंग, एंड डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So now the last step is, now we are going to find out the balance amount. So balance यहाँ का डेबिट साइड का टोटल करेंगे, and then we'll find out the difference of balance which is 124,110. Now ये balance आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो. While depreciation account gets automatically tallied. So we understood the process is so simple. Once you understood the entire process,
it becomes so easy for us to do the work. कितना आसान है, जस्ट हमें अपने दिमाग में लॉजिक चलाते रहना है. Where we are going to purchase the asset, then we are going to charge depreciation and will transfer the depreciation. Great. So now let's recall and let's understand whether we have understood the concept of depreciation correctly or not. So let's have a recall test. सोच के बताइए, depreciation charges are financial expense or is it a non-cash expense? Financial expense or a non-cash expense? Yes, your guess is right. It's a non-cash expense. The reason is that हम depreciation amount किसी को देते नहीं हैं. जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा हम किसी को पे करते हैं, लेकिन depreciation amount we do not pay to anyone. That's why depreciation charges are non-cash expenses. Let's see the second one. Which of the following asset generally assumed not to depreciate? इन दोनों में कौन सी asset ऐसी है जो generally depreciate नहीं होती? Is it building or is it land? Yes, you are right. The answer is land. Building, generally the life of building is 40 years. 40 साल की एक बिल्डिंग होती है, मैक्सिमम 40 years तक की लाइफ होती है, एंड आफ्टर 40 years we are going to reconstruct the building. तो जैसे जैसे age of life of building increases, we find the value of houses or value of flat decreases. इसीलिए depreciation takes place in building but not in case of land, because land की value हमेशा बढ़ती है as it helps in increasing the production. ठीक है? So we understood about the concept of depreciation. I hope आज का concept आपको मजा आया होगा, और अगर आपको concept मजा आया है तो I hope आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है और आपको ये वीडियो शेयर करना है. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. By the time, see to it that you are learning nicely. So keep learning, keep growing, keep watching Mentoring Minds with Ajay Sharma.